Hi friends, so let's start today's analysis. I think the markets have been doing pretty good from last 2 3 days, and now it's the third consecutive day where we are closed in green. So we were waiting for the markets to break out. I think the markets have given a clear breakout now, and most importantly, the sellers are back, which means that probably the only seller in the Indian market, which are the FIs, if they start buying, then there is no reason for the Indian participants to become bearish, or let's say we doubt the rallies. Now, why I'm saying it? So, first, let us see what is happening around the world, and then we'll come to the Indian markets and probably see where exactly we can go from these kind of levels. That is most important now. Where the rally will fail. That is the most important part. So, so Trump is doing a lot. He announced that the team is ready now for the reciprocal tariffs to come on 2nd April. And he's telling that 18% of the countries they are covering in terms of reciprocal tariffs. There has been talk which is happening between Russia and Ukraine, which has been mediated by Trump. So Trump spoke around 2 hours with Russia yesterday, and a kind of conditional ceasefire has happened where Russia has told that they will not, you know, bomb the targets which are nuclear or let's say energy driven facilities. तो वो उनके एनर्जी फैसिलिटीज के ऊपर बॉम्बिंग नहीं करेंगे एंड दैट्स अ काइंड ऑफ पार्शियल सीजफायर व्हिच हैज हैपेंड probably some kind of leeway or some kind of एक मुंह छुपाने की जिसे कहते हैं एक some kind of a way out have been given to Mr. Trump because Trump was thumping his chest. He was telling to the world that he's the only person who can stop the war, and he has not been successful till now. And it will not be easy, right? Because things are complex. Europe is also a party, so let's see what happens. But the crude has reacted to it, and crude is now again below $70 or on and around that those levels, which is again a fantastic news for India considering our macros. Bond yields are not inching upwards in spite of the inflation threats which can come from the tariffs. तो मार्केट को वहां से कोई डर नहीं लग रहा और ऐसा लग रहा है कि मार्केट्स यूएस मार्केट्स में एंटर इनटू रिसेशन. हमने पहले ही बात करी थी कि सिटी बैंक गोल्डमन सैक्स ने कहा है कि और जेपी मॉर्गन ने कहा है कि 40% चांस है कि यूएस मार्केट्स शायद चले जाएं रिसेशन के अंदर. वो जाएंगे नहीं जाएंगे, वी हैव टू वेट एंड सी. In fact, I'll give you my view also on that because ये एक ऐसा इवेंट है या एक ऐसा डर है लोगों के दिल में जिससे कि हमारे इंडियन मार्केट्स को अफेक्ट पड़ रहा है बिकॉज ऑफ आईटी. तो अंडरस्टैंड 2 3 थिंग्स हमारे आईटी इंडेक्स के ऊपर विद यूएस रिसेशन. फर्स्ट थिंग, हमारा जो मेजर बिजनेस आता है वो नैस्डैक से नहीं आता है. हमारा आता है उनके बैंक से विच वी कॉल एज BFSI सेगमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस. दूसरा बड़ा चंक आता है वहां की रिटेल से, जैसे वॉलमार्ट हो गया, दोज काइंड ऑफ रिटेल्स ड्रिवन इंडस्ट्रीज. वहां से एक सेकंड चंक आता है. एंड थर्ड ऑफ कोर्स इज योर रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री व्हिच गिव लॉट ऑफ वर्क टू इंडिया. तो हमें नेस्डेक के वो जो मैग्निफिसेंट 4 है उनसे फर्क नहीं पड़ता, या 7 जिसे हम कहते हैं, उनसे हमको फर्क नहीं पड़ता. अगर एनवीडिया टूटता है और एनवीडिया के चिप्स नहीं बिकते हैं, एआई अगर उनका मॉडल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ डीप सीक, इसे इंडिया कोई हार्म नहीं है. And there is no business which India will lose. So that is part number one. Part number two, rupee is still weak. ठीक है, हम 88 के लेवल से हम 86.5 पे आ गए, वी रिकवर्ड 1.5% हमने रिकवर कर लिया है, बट स्टिल वी आर वीक एज कम्पेयर टू 8023 लेवल्स जो पुराने क्वार्टर्स में हुआ करते थे. दैट्स अगेन अ पॉजिटिव फॉर निफ्टी आईटी. थर्ड, we have already brought Nifty IT into a bear category. It is now almost 20 to 23% down from its highs. तो ऐसा लग रहा है कि आपने तो पहले ही प्राइस इन कर लिया है कि हाँ रिसेशन वहां पे आ रहा है और अब निफ्टी आईटी को तोड़ दो. एंड बिलीव मी, आई थिंक द मेजर सेलिंग ऑफ निफ्टी आईटी हैज हैपेंड फ्रॉम डीआईआईज, जिन्होंने वो ऊपर से बाय किया था. दे वांटेड टू हैव अ सेफ बेट इन द फॉर्म ऑफ आईटी कि सब कुछ टूट रहा है डोमेस्टिकली, तो लेट्स कीप इंडियन आईटी इनटू द पोर्टफोलियो. क्यों? क्योंकि यूएस वाज डूइंग गुड एंड डोमेस्टिक वाज नॉट डूइंग गुड. हमारा जीडीपी ग्रोथ कम हो गया था और हमारे पास वो अर्निंग्स नहीं आ रही थी. तो टू कीप द पोर्टफोलियो unharmed or let's say protected, or let's say to protect the fall, लोगों ने आईटी कंपनीज को बहुत भर लिया at higher prices and they have to exit now because they did it because of just following the FI's line, which is not the right case. तो मुझे लगता है बहुत सारे जो सेलिंग आया आईटी स्टॉक में FI ड्रिवन भी आया है. नाउ इट इज टू अर्ली टू प्रीएम्प्ट कि यूएस में रिसेशन आ रहा है. पहली बात तो अभी तक कोई नंबर ऐसा नहीं आया है जहां पे जीडीपी स्लो डाउन है यूएस के अंदर.
जीडीपी हम रिसेशन तब बोलते हैं यूएस के अंदर जब एटलीस्ट 2 लगातार क्वार्टर्स, 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स आर इन नेगेटिव। अभी तो 1 क्वार्टर भी नहीं आया। प्लस फेड हैज़ अ टूल, फेड के पास टूल है आज। क्यों टूल है? क्योंकि उनके इंटरेस्ट रेट्स आज 4.25% से 4.5% के बीच में है। So they have a tool to cut the interest rates and again go through that increased stimulus in the economy to increase your money churning process and infuse कर दो आप, just infuse money into the economy। उनके पास कोई लीवर बचा हुआ है। अगर यही इंटरेस्ट रेट जो पहले चल रहा था 2010 से लेकर 2019 तक, जहां पे आपके इंटरेस्ट रेट जीरो पे थे, वहां डिफिकल्टी होती है अगर आपकी जॉब ग्रोथ नहीं हो रही है और आप रिसेशन में हो, तो हाउ टू कम आउट ऑफ इट, बिकॉज ऑल यू डोंट हैव एनी टूल्स। यूएस के पास तो एक टूल है। उनको जैसे ही लगेगा कि लेबर मार्केट वीक हो रहा है बहुत ज्यादा, या जॉब ओपनिंग्स कम हो रही है बहुत ज्यादा, या फिर आपके जो कंज्यूमर सेंटिमेंट है और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बहुत तेजी से कम हो रहा है, they have the tool to again bring down the, or let's say bring down the interest rates to infuse the, inflate the economy। आप वो चर्निंग शुरू कर दोगे। हाँ, उसमें इन्फ्लेशन क्या एक पार्ट प्ले कर सकता है। बट फेड की चिंता, सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? फेड एक्चुअली वांट्स द जॉब मार्केट्स टू रिमेन हेल्दी। वो जॉब मार्केट्स पे बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं। दे डोंट वांट द जॉब मार्केट्स टू एक्चुअली कम डाउन। तो जहां उनको लगेगा कि उस मार्केट में फर्क आ रहा है, दे विल रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट्स, दे विल टॉलरेट सम इन्फ्लेशन हायर आल्सो। एंड ऑल्सो इट इज टू अर्ली टू प्रीएम्प्ट कि इन्फ्लेशन बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। बट हाँ, इन्फ्लेशन विल बी रिमेन स्टिकी एंड विल स्टार्टली इंच अपवर्ड्स, स्पेशली विद द टैरिफ्स ऑफ स्टील एंड एल्यूमिनियम, या वो बाकी जो टैरिफ लगाते हैं। बट देयर आर वेज, पीपल विल फाइंड देयर वेज। जैसे अभी 3-4 दिन पहले न्यूज आई थी कि लॉट ऑफ ट्रक्स आर असेंबल्ड नाउ द बॉर्डर्स ऑफ यूएस। जो कनाडा पे टैरिफ है, मैक्सिको टैरिफ है, दे आर ट्राइंग टू रीरूट द सेम स्टफ जो प्रोड्यूस हो रहा है मैक्सिको, और उस पे वो बाय रोड ले जाकर उसको दूसरी जगह से एंट्री करा रहे हैं बॉर्डर के अंदर, सो दैट वो टैरिफ बचे। देयर आर वेज, पीपल आर वेरी स्मार्ट इन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। दे नो हाउ टू crack down these tariffs and all those things. So it will be too early, but inflation अगर uptick होता भी है, Fed will not play with the job openings of the workers। वो वहां पे उस स्टिमुलस को कंटिन्यू रखेगा एंड यू विल नॉट सी अ मेजर रिसेशन इन्वेस्ट कमिंग इन यूएस। ऑन द कॉन्ट्री, अगर यूएस की जो पॉलिसीज है उससे थोड़ा फायदा होता है यूएस कंपनीज को। फॉर एग्जांपल, जो वो कॉर्पोरेट टैक्स कट्स करता है, जिससे कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ती हैं, अगेन इज अ पॉजिटिव टू द इंडियन आईटी कंपनी। सो इंडियन आईटी कंपनी को आप पूरा रोल आउट नहीं कर सकते। इट्स नॉट दैट इट इज डाउन एंड ओवर। So that's my small version on Nifty IT। I'm not positive on Nifty IT। I'm neutral on Nifty IT। बट मैं बहुत ज्यादा बेरिश पे नहीं हूँ निफ्टी आईटी के ऊपर। ठीक है, उनके डील में से फर्क पड़ सकता है, उनको जो एआई से खतरा है वो हो सकता है, देयर इज नो डिनाइल इन दैट फैक्ट। बट डोंट फॉरगेट, इंडियन इंडस्ट्री इज अ वेरी मैच्योर इंडस्ट्री। हमने ऐसी बहुत चीजों को ओवरकम किया है। वी गॉट अ इशू ऑफ Y2K इन 2000, डॉट कॉम क्राइसिस हुए, कितनी बार क्लाउड कंप्यूटिंग आया, कितनी बार चेंजेस हुए। ये थोड़ी ना टेक्नोलॉजी सेम रही है, कांस्टेंट रही है। Indian companies who are attracting best of talent, at least from India and from US all around the world, they have all the ammunition to oversee, or let's say, overcome these kind of difficulties, and they will do that. They are very smart. It's not that they are not able, they are not seeing this challenge. They are, and they will overcome it. Moreover, एक चीज ध्यान रखना, अगर AI से जॉब लॉसेस होते भी हैं तो वो आईटी के लिए नेगेटिव नहीं है। If their contracts are reviving, even with slightly lower prices, but they will save a lot in terms of human resources, because AI will reduce your human cost। So जो डील विन आपकी कम होगी, प्राइसेस जो हम बोलते हैं डील्स की कम भी होती हैं, इट विल गेट ऑफसेट बिकॉज ऑफ दैट ह्यूमन एलिमेंट गोइंग आउट। तो इंडियन आईटी कंपनीज को प्रॉफिट पे लॉस नहीं होगा। द रेवेन्यू में कम डाउन, बट बॉटम लाइन पे लॉस नहीं होगा, ना प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर ना प्रॉफिट के ऊपर। कीप दैट इन माइंड। सो निफ्टी आईटी पे आप कंस्ट्रक्टिव रहिए टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि हाँ ठीक है, वी आर नॉट वेरी बुलिश ऑन निफ्टी आईटी, बट वी कैन नॉट बी टू नेगेटिव आल्सो निफ्टी आईटी। दैट्स अ इंडस्ट्री व्हिच इज वेरी वेरी कैश ड्रिवन, एंड दैट इंडस्ट्री इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आपने एआई को जस्ट, इट्स एट अ पायनियरिंग स्टेज। उस पायनियरिंग स्टेज से उसको मैच्योर स्टेज में जाने के लिए आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर लगेंगे, बहुत सारे प्रोफेशनल्स लगेंगे, वो सब इंडिया से आएंगे। Those all will come from India. So don't forget, Indian IT will contribute the expansion of AI. So AI is good to a certain extent, and it is not that it is too negative for Indian IT company. As such, for the companies, professionals का नेगेटिव हो सकता है, उनके जॉब ग्रोथ का नेगेटिव हो सकता है कि हमको जॉब ग्रोथ इंडिया में फेस करने पड़े। बट निफ्टी आईटी कंपनीज के प्रॉफिट्स को तो फर्क नहीं पड़ेगा, दैट आई डाउट। इट विल नॉट हैपन। सो so that is one point. So don't be too negative on Nifty IT. That's one point I just wanted to make, but we got drifted. So
यूएस के अंदर रिसेशन के चांसेस हैं नहीं हैं, ओनली टाइम विल टेल। नाउ इट्स ओनली 40% प्रोबेबिलिटी। और ट्रम्प एंड हिज पीपल, दे आर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर चार्ज, दे विल नेवर वांट द इकोनॉमी टू सिंक। कोई कभी ये उनको बोलने का मौका नहीं देना चाहेगा कि पिछले बाइडेन ने तो मेरी इकोनॉमी को स्ट्रांग मेरे हाथों में दिया और मैंने उसको बर्बाद कर दिया। आई थिंक दैट विल नॉट हैपन, दैट नोबडी विल लाइक इट। Tariffs are also slightly loosening out their relevance. धीरे-धीरे people are forgetting the tariffs. ठीक है, जिस प्रोडक्ट पे लगेगा, जिस कंट्री में लगेगा, उतना मार्केट कैप, उतना कंपनी का प्रोडक्ट, वो जो इफेक्ट आएगा उसको मार्केट प्राइसिंग करने का। बट इट्स नॉट दैट मार्केट विल प्राइस इन अ ह्यूज रिसेशन ओवर द एंटायर वर्ल्ड एटसेट्रा ऑल दो थिंग्स। वो नहीं होने वाला है। इट विल नॉट हैपन। वर्ल्ड इज टू बिग फॉर दैट। पीपल विल फाइंड देयर वेज। चाइना में क्या हो रहा है? चाइना इज गिविंग टू मच स्टिमुलस इनटू द इकोनॉमी। वो तो स्टिमुलस की बाहर लेके आ गए हैं। बट डोंट फॉरगेट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टिमुलेट चाइनीज कंजम्पशन। दे आर बिग सेवर्स। वो खर्च करना पसंद नहीं करते हैं। एंड द प्रॉब्लम ऑफ इन चाइना इज नाउ दैट दे कैन नॉट बी एक्सपोर्ट ड्रिवन टू मच, क्योंकि उनको एक्सपोर्ट्स पर तो दिक्कत आ रही है। टैरिफ्स आर देयर, दे आर नॉट बिकमिंग कॉम्पिटिटिव। और उनको प्रॉब्लम क्या हो रहा है? डॉलर इंडेक्स कम हो रहा है। डॉलर इंडेक्स यस्टरडे इट केम बिलो 103। नाउ इट इज slowly हेडिंग टुवर्ड्स 102। जो हमने बताया था कि 102 पे कहीं ना कहीं सपोर्ट थोड़ा टाइम के लिए डॉलर इंडेक्स लेगा, बट इवेंचुअली इट विल स्टार्ट गोइंग बिलो 100। दैट्स व्हाट ट्रम्प वांट्स। इनफैक्ट वो बात हो रही है कि हम प्लाजा अकॉर्ड दोबारा करें। इफ यू रिमेंबर प्लाजा अकॉर्ड, जो एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी यूएस की, जहां उन्होंने बोला था कि बाकी करेंसीज को बोला था आप स्टॉप अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करिए और यूएस के डॉलर को वीक करिए। मेरे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कंपैटिबल नहीं है, दे आर नॉट नो लॉन्गर कॉम्पिटिटिव। वो उस तरह की बातें दोबारा हो रही है। डॉलर इंडेक्स दोबारा आपको लूज ऑफ कूल ऑफ हो रहा है। चाइना में नेवर एग्री टू इट कि मैं अपनी करेंसी स्ट्रॉन्ग कर लूं, बिकॉज दे आर वेरी एक्सपोर्ट ड्रिवन। बट उस तरह की बातें हो रही हैं। दैट्स व्हाट ट्रम्प वांट्स एक्चुअली, कि डॉलर डॉलर को कम करूं। डॉलर कम करना उनकी मजबूरी भी है, बिकॉज they have to pay a lot of debt. They are suffering from huge amount of debts. They want the dollar to be weaker, which is again good for India. So चाइना के अंदर आप स्टिमुलस जो जनरेट करना चाह रहे हैं, they have reduced now the consumer loans, which was interest rate, which was around 10% to 2.5%, is the lowest in their ever history. तो इतना बुरा हाल हो गया है कि आप 10% से 2.5 पे आ गए, फिर भी कंज्यूमर सेंटिमेंट इंप्रूव नहीं हो रहा है। क्यों? चाइना में लोग लोग सेव करना पसंद करते हैं। इट्स नॉट इजी फॉर देम टू बर्न मनी लाइक दिस। वो यूरोप करता है, वो आपका अमेरिका करता है कि दे विल सेव ओनली 5%, स्पेंड 95%। वो कल्चर चाइना में नहीं है, इंडिया में नहीं है। इंडिया सेव 40%। हमारा सेविंग रेट 40% है जनरली। अगर हमारे 100 रुपए हम कमाते हैं तो हम 60 स्पेंड करते हैं, 40 हम सेव करते हैं। ऐसे ही चाइना के अंदर है। तो चाइना को जो कोशिश करी जा रही है स्टिमुलेट करने की, डिफिकल्ट। पर चाइना की एडवांटेज ये है कि चाइना ऑन अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव इट इज वेरी लो। और फर्स्ट टाइम लोगों को लग रहा है कि जिनपिंग इज ट्राइंग टू डू समथिंग वेरी कंस्ट्रक्टिव, एंड दे आर नाउ सेट इन देयर माइंड कि हमें चाइना को कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी बनाना है rather than from export driven economy. They want the economy to turn to consumer driven, that they've been trying for last 10 years, but now they are very serious out of it. इसलिए लोगों को लग रहा है people are going toward China now. That is why the money is flowing toward China in that anticipation. Hang Seng तो खैर strong है ही because of their technology driven stocks, वो continue to be stronger because हमने बोला वो structural story है. That is a structural story. कल बहुत सारे numbers आए US economy के, रिटेल से नंबर आए, वो एक्सपेक्टेशन से कम है, बट एटलीस्ट ऑन मंथ ठीक है, बट एक्सपेक्टेशन से कम थे। पर मार्केट को भी थोड़ा बहुत चीयर किया, बट सेंटिमेंट्स आर स्टिल डाउन। उनके प्रोडक्शन के नंबर्स आए, व्हिच वाज अगेन गुड। फिर और भी जो जो बेसिक इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एक्सेट्रा, दोस ऑल नंबर्स आर गुड। इट इज नॉट शोइंग एनी साइंस ऑफ एटलीस्ट रिसेशन। इट इज शोइंग अ साइन ऑफ वीकनेस, बट इट इज नॉट शोइंग अ साइन ऑफ रिसेशन। अगेन टुडे एनीवेज अ वेरी बिग इवेंट इन यूएस। आपका एक फेड का जो रिजल्ट आएगा वो आज होगा। लेट्स सी व्हाट इट सेज। द डॉट प्लॉट इज शोइंग 3 rate cuts. Let's see what happens, but I think, sorry, dot plot is saying 1 rate cut. Problem is market is anticipating at least 3 rate cuts in this year. So let's see who turns out to be right. Might be market is right. Let's see what Fed says. Fed will not tell you anything good today. He will be he'll try to remain confused, and they will give a very short term view कि हम इस पॉलिसी के अंदर कोई स्टेटस को है, वी आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग। गोइंग फॉरवर्ड विल रिमेन डेटा ड्रिवन, एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। बट let's see if how much they comment on recession. They have their governors have been telling in that way. अगर फेड बहुत सीरियस होकर बोलता है कि they are seeing signs of economy slowing down very badly, then of course Fed has to come in and do the rate cuts. That is what they wanted.
Why do you want to keep your economy at 4.25% to 4.5% interest rate, which is such a big country? तो अगर वो रेट कट्स होते हैं, रिसेशन आता है यूएस के अंदर, अगेन गुड फॉर द वर्ल्ड, बिकॉज वर्ल्ड वाइड आपके रेट कट्स होंगे. इंडिया विल आल्सो फील मच मोर इजी टू डू द रेट कट्स. वैसे ही हमारा एक अपनी पॉलिसी का रेट कट ड्यू है. सो अगेन अ गुड थिंग. अगर वो बोलते हैं कि नहीं इकोनॉमी इज डूइंग गुड, देन फाइन, द निफ्टी आईटी विल रिकवर. जो वो उतना एक उसमें डेंट आ गया है उतना बड़ा, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है, थोड़ा नेगेटिव इस मीटिंग से निकल के नहीं आना. मुझे ऐसा लगता नहीं कि आना चाहिए. एंड दैट इज व्हाई द पब्लिक द मार्केट एक्शन वाज सेइंग टुडे दैट वी डोंट वांट टू वरी अबाउट दैट इवन एट ऑल. That is how we still close at 70 points up. Bank Nifty also around 400 points up, at least provisional basis पे. हमको डर नहीं था, FIs को डर नहीं था. They still went long today, as at least that's what the data was, screen was telling. Numbers have to come. तो जब उनको डर नहीं है तो हमें क्यों डर है? So that is another part. Now, our markets are looking strong. वो तो खैर strong थे ही. हमने क्या क्या predictions किए थे? Let's just rewind for last 1 month. हमने बोला कि बॉन्ड यील्ड स्टॉप आउट हो गए 4.8 को कभी नहीं पहुंचेंगे. दैट इज अगेन कमिंग टू ट्रू नाउ. इट्स hovering around 4.2, 4.25, 4.3 काइंड ऑफ रेंज. हमने बहुत पहले बोला डॉलर इंडेक्स स्टॉप आउट कर गया, जब कोई बातें भी नहीं करता था इसके बारे में. हमने डॉलर इंडेक्स स्टॉप आउट कर गया, 10110 कभी नहीं पहुंचेगा. वेरी अर्ली वी प्रीएम्प्टेड ऑल दोज मूव्स. दिखने लग गया था. छोटे छोटे डेटा पॉइंट्स आपको दिखा रहे थे. नाउ वी आर कमिंग लेस देन 103. तो 110 तो बहुत दूर की बात है, वहां हम पहुंचने वाले ही नहीं है. हमने कहा यूएस मार्केट टॉप आउट हो गया है, वहां नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंच रहा है. द मार्केट्स आर इन द करेक्शन जोन कंटिन्यूअसली. Nasdaq तो करेक्शन टेरिटरी में आ गया है. S&P वाज ऑन द बॉर्डर यस्टरडे. लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुडे. हमने कहा कि स्ट्रक्चरल स्टोरी है Hang Seng के अंदर. इट इज स्टिल गोइंग ऑन इन दैट वे. चाइना विल आल्सो रिमेन वेरी स्ट्रांग. इंडिया विल आल्सो रिमेन वेरी स्ट्रांग. दे बोथ दिस मार्केट्स विल आउटपरफॉर्म यूएस मार्केट्स. अभी तक तो वो कर रहे हैं. हमने कहा कि आपका जो रुपी है उसका टॉप बन चुका है, 88 नहीं तोड़ेगा. इकोनॉमिस्ट बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने स्टडी करके बोला 88 या 88.5 इसका लो है, ये हाई है. हम वहां नहीं पहुंचे, आज हम 86.5 पे हैं. हमने बोला कि 22,800 का एक लेवल जो टूटना नहीं चाहिए, वो थोड़ा हमसे गलत हुआ. फिर वेंट टू 22,100. मैंने कहा वो नहीं टूटेगा एटलीस्ट अब, क्योंकि निफ्टी का फेल लेवल वही था. और आप देखिए निफ्टी ने 22,800 को 7 टाइम डिफेंड किया था बिफोर ब्रेकिंग इट. तो जब क्रॉस किया तो एक दिन नहीं लगाया. अगर वो इतना बड़ा रेजिस्टेंस होता तो मार्केट वुड हैव स्पेंट एटलीस्ट 3-4-5 डेज ऑन इट. मार्केट ने एक दिन लगाया. इन वन सिंगल मूवमेंट वी क्रॉस 22,800, व्हिच मींस वो रेजिस्टेंस था ही नहीं. इट जस्ट गॉट ब्रोकन डाउन बिकॉज वो एक जब आप कंपल्शन में बेचते हैं तो मार्केट कभी फेवरेबल रुकता नहीं है. इट गेट्स स्ट्रेच्ड ऑन द नेगेटिव साइड आल्सो, इसलिए वो स्ट्रेच हुआ. बट 22,800 वाज द बिगेस्ट सपोर्ट. आई केप्ट ऑन टेलिंग, बट ठीक है वो मार्केट को उस समय, तो मार्केट हैज स्पेंट 7 ट्रेडिंग सेशंस बिलो इट एंड देन अगेन इट हैज गॉन अप. तो वो बहुत छोटे टाइम के वहां पे नीचे गया. दिस इज व्हाट वी एंटिसिपेटेड कि वो सपोर्ट आपका रहेगा, वो नहीं टूटेगा. ये साइन से अभी भी नहीं टूटेगा गोइंग फॉरवर्ड इन स्पाइट ऑफ व्हाट हैपेंस अराउंड द वर्ल्ड. हमें का टैरिफ का फर्क नहीं पड़ेगा इंडिया का बहुत ज्यादा. आज देखिए फिंच की रिपोर्ट आई, उसमें बोला इंडिया इज इंसुलेटेड फ्रॉम, मोर और लेस इंसुलेटेड फ्रॉम द टैरिफ वॉर. दैट्स अगेन वन थिंग व्हिच एट लीस्ट वी प्रेडिक्टेड, जो सही हो रहा है. हमने कहा कहां जाएंगे एफआईएस, वापस इंडिया में ही आएंगे. दे आर कमिंग बैक, दे हैव टू कम बैक. द प्रॉब्लम इज उन्होंने यूरोप में तेजी कर ली, फिर मंदी कर ली. चाइना आप बढ़ा चुके हो, आप हांगकांग बढ़ा चुके हो. यूरोप तो ऑलमोस्ट इज नॉट ट्राइंग टू फॉल एट ऑल. यूरोप भी बाय द वे एक सक्सेस स्टोरी है. कल जर्मनी ने पहली बार अपना डिफेंस का बजट बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है, व्हिच मींस दे आर इन अ स्पेंडिंग स्प्री. दे आर नाउ इन अ एक्सपेंशनरी पॉलिसी, व्हिच मींस कि वहां पे अब गवर्नमेंट चाहती है कि हम फिस्कल डेफिसिट को इंक्रीज करें. कोई बात नहीं, बट लेट अस स्टिमुलेट आवर इकोनॉमी. तो यूरोप विल डू वेरी गुड नाउ. अगेन आउटकस्ट किया अमेरिका ने, बट उनको फायदा हुआ. इससे बहुत बड़ा फायदा होगा उनको, बिकॉज जो इकोनॉमी सो गई थी, जो स्लो हो गई थी, खत्म हो गई थी, दैट विल स्टार्ट रिवाइविंग. एंड दिस इज हाउ थिंग्स हैपेंस. 1991 में जब मनमोहन सिंह को और नरसिम्हा राव को बोला गया कि भाई आई विल गिव यू द लोन ओनली व्हेन यू ओपन योर इकोनॉमी, दैट इज व्हेन द लिबरेशन स्टार्टेड टुडे. लेट्स सी, एंड यू ऑल नो वेयर वी आर टुडे. सो थिंग्स स्टार्ट विद अ कंपल्शन, बट देन इट बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी, एंड इट इज हैपनिंग नाउ. आप देखिए न्यूजीलैंड के पीएम आते हैं, बोलते हैं कि वी वांट टू डू अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया. यूके के पीएम आते हैं, बोलते हैं वी वांट टू डू अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया. यूरोप के बहुत बड़े लीडर्स आते हैं, बोलते हैं वी वांट टू अ बिग ट्रेड रिलेशनशिप विद इंडिया. यूएस कहता है कि वी वांट टू पार्टनर विद इंडिया. रशिया कहता है थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग द वॉर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया. दे आर थैंकिंग इंडियंस फॉर इट.
तो वर्ल्ड में इंडिया की रिकॉग्निशन है, जो डेमोग्राफिक एडवांटेज है, वो आपको इतना नहीं गिरने देगा कभी भी। और गवर्नमेंट ने बहुत से स्टेप्स लिए। हमने कहा गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, इसका एडवांटेज आपको मिलेगा, बट लोगों को ये मार्केट सैलून राइज का लगा। पीपल थॉट दिस इज अ मार्केट ऑफ फर्स्ट टाइम मार्केट कुछ करेगा ही नहीं। These all are theories. Our job is to analyze the dots, analyze the knowledge around us. When will market react is up to the market, because market के players different हैं. They are foreign players who are operating our markets. So when will they think India is right to enter is entirely their choice. But the thing is, we know what is happening around us. What are the parameters which affect our stock markets, and if they're looking benign, then that's the entry point. अब आपको एंट्री करने में बहुत दिक्कत आएगी मार्केट के, जिन लोगों ने अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, बिकॉज आपको लगेगा नहीं यार, वो पहले तो 40 में मिल रहा था, नाउ इट इज गेटिंग 50, आई वांट टू वेट, आई वांट टू गेट एट 43 नाउ। मार्केट एक बार करेक्ट हो जाए, नाउ फोमो विल स्टार्ट कमिंग इन। धीरे धीरे जगह मार्केट बढ़ता गया, तो आई डोंट नो मार्केट कहाँ फेल होगा, बट अगर वो बढ़ता गया तो एक फोमो आता जाएगा। फोमो आएगा तो फिर दोबारा से एक यू विल सी अ रैली, अ लिक्विडिटी ड्रिवन रैली अगेन, प्रोबब्ली विल अगेन टू रीच टू अ लेवल जो अनसस्टेनेबल होंगे। वी वांट द रैली टू बी स्लोअर, वी वांट द रैली टू गो अप डाउन स्लोली स्लोली। हम चाहते नहीं मार्केट बहुत तेज ऊपर जाए, अगर बहुत तेज ऊपर जाएगा तो बहुत तेज नीचे भी आएगा। द सेम थिंग हैपेंड इन द जुलाई रैली, व्हिच इज द पोस्ट इलेक्शन रैली। हमने 3000 पॉइंट्स का एक जंप लिया फ्रॉम 23 लेट्स से 22,500, जहां पे इलेक्शन पे थे हम लोग, अप्रोक्सीमेटली इन दैट रेंज। वहां से हम 4000 पॉइंट्स ऊपर गए, अप्रोक्सीमेटली 20%। तो 20% आप इंडिया से बढ़ जाओगे एंड द अर्निंग्स आर नॉट देयर एंड देयर इज नो कैच अप ऑफ द अर्निंग्स, तो कभी होता नहीं। सो मार्केट शुड ऑलवेज बी स्लोली एंड स्टेडीली मूविंग अपवर्ड्स। वी डोंट वांट अ रैली टू बी अपफ्रंट वेरी फास्ट, वो हमारे लिए अच्छा वैसे भी नहीं है। बट नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि वेयर आर मार्केट्स प्लेस्ड, और कहां तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रैली चलनी चाहिए। मतलब दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन कि एक्चुअली रैली चलेगी कहां तक। तो 22,800 तो मैं बोलूंगा कि एक फर्स्ट बेस आपका दोबारा से एक्वायर किया है इंडियन मार्केट्स ने। Our army has taken the first fort, which is 22,800. But that is not where the market should take rest. I think the next bigger thing, which is 23,000, I think market will be able to cross this frontier also. 23 to 50, I think that should also get crossed. I don't think that can also be uh, let's say a stopping point. मेरे ख्याल 23,500 इज वन पॉइंट जहां पे हमको रिव्यू करना चाहिए कि मार्केट्स के ऊपर ऊपर कितने लेग्स और बचे हैं। रीजन इज मार्केट में क्या स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी बैंक। बट निफ्टी बैंक की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है निफ्टी बैंक के अंदर? एक तो इंटरेस्ट रेट कट जब होते हैं तो आपको बैंक को इनिशियल 1 और 2 रेट कट्स के अंदर एक डिसएडवांटेज रहता है, बिकॉज आपकी थोड़ा सा निम्न से प्रेशर आता है। दूसरा क्या है कि आपकी क्रेडिट ग्रोथ जो 70% चल रही थी वो आ गई थी 11% पे, तो क्या वो क्रेडिट ग्रोथ दोबारा 17% पे आई है? वी डोंट हैव द आंसर्स। द एडवांटेज ऑफ निफ्टी बैंक है वैल्यूएशन कंफर्ट है, दैट इज द रीजन व्हाई इट इज लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। बट जैसे ही वो 52,000 पहुंच जाएगा, 51,000 पहुंच जाएगा, उसके बाद क्रॉस करना शुरू कर देगा, तो आपको जो एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी था इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, वो कहीं ना कहीं कम होना शुरू हो जाएगा। तो 48,000 में बैंक निफ्टी वॉज लुकिंग अट्रैक्टिव, बट क्या वो 50,000 में अट्रैक्टिव लगेगा? वी डोंट नो। तो निफ्टी बैंक के लिए फिर आपको अर्निंग्स का वेट करना पड़ेगा कि भाई क्रेडिट ग्रोथ कितनी आई है, जीडीपी ग्रोथ कितना हुआ है। तो मार्केट मार्च में तो आपको उस वो लेवल पर जाने वाला नहीं है। निफ्टी आईटी विल रिमेन वीक क्योंकि लोग सर्कमस्पेक्ट रहेंगे हमेशा। और निफ्टी आईटी 20% वेट, 20 to 25% वेट ऑफ इज ऑफ योर आईटी। तो वहां आपको एक दिक्कत है। निफ्टी मेटल्स के अंदर हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, बिकॉज यूएस में अगर इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है तो व्हाई विल निफ्टी मेटल्स राइज? सिर्फ डॉलर इंडेक्स है तो निफ्टी मेटल नहीं बढ़ सकता ना। निफ्टी डॉलर इंडेक्स इज वन पैरामीटर, बट अल्टीमेटली कंजम्पशन इज रिक्वायर्ड। चाइना में बोल सकते हैं, चाइना के अंदर जो कंजम्पशन जो स्टोरी आ रही है, दैट इज कंज्यूमर ड्रिवन, दैट इज नॉट इंफ्रा ड्रिवन। जो चाइना ने जो अपनी इकोनॉमी को स्टिमुलेट किया वो लास्ट 20 इयर्स, बिटवीन लेट्स से 1992 से लेकर लेट्स से 2012 तक, या फिर आप बोलिए उन्होंने पहले लिबरेशन स्टार्ट किया, लिबरेशन दे स्टार्टेड इन 84 85। तो 90s की और जो 2000 लेकर 2010 की जो स्टोरी थी उनकी, वहां पे इट वाज मोर ऑफ इंफ्रा ड्रिवन स्टोरी। To earn $1, they were spending $100. That was the kind of infra they were doing. अब आपको इंफ्रा नहीं चाहिए, अब यू कांट हैव द कैपेसिटी टू डू इंफ्रा अगेन। आपके जो हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं वो बैरन पड़े हुए हैं, सिटीज आर बैरन। तो निफ्टी मेटल्स
will remain subdued, and it does not have too much of weight on Nifty at all at any such. आपको दिक्कत कहाँ से आई? FMCG that is not willing to perform. वहाँ कोई साइंस नहीं है रिवाइवल के. निफ्टी आईटी स्टिल सबड्यूड. तो स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स क्या बचे आपके? आपके बचे थोड़े बहुत मेटल्स, बट फार्मा एंड बैंकिंग. फार्मा अगेन इंडेक्स वेटेज कम है. तो आपको जो निफ्टी के अंदर जो पुल आ रहा है वो निफ्टी बैंक से आ रहा है. जब तक निफ्टी बैंक स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, आपको रिलायंस से भी एडवांटेज नहीं मिल रहा. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. 23,500 पे आपको व्यू करना पड़ेगा कि हमें अब कौन से पॉकेट ऐसे हैं जो निफ्टी को और सपोर्ट कर सकते हैं. सिर्फ निफ्टी बैंक के भरोसे और रिलायंस, हम एज्यूम करें रिलायंस चलना शुरू हो जाएगा तो हम 23,500 तक पहुंच सकते हैं. उसके बाद हमें रिव्यू करना पड़ेगा कि कौन से इंडेक्स में अब वो स्ट्रेंथ बची है इसको और ऊपर जाने की. और वैसे भी उसके बाद FI will like to see the numbers of results, quarterly results, to see the impact कि भाई जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं उससे क्या फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, whether the graph is going upwards or not. अगर उनको स्निफ लगेगा तो यू विल सी अ बाइंग. क्या FMCG के अंदर कुछ इंपॉर्टेंस, कुछ फर्क हमें नजर आता है कि नहीं आता है? निफ्टी आईटी विल रिमेन यूएस ड्रिवन. निफ्टी बैंक में क्या क्रेडिट ग्रोथ वापस आ रही है कि नहीं आ रही है? ऑटो सेल्स क्या बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं नंबर्स, है ना? सो टैक्स कलेक्शन क्या हमारे बढ़े? टैक्स कलेक्शन नहीं मिल गुड न्यूज टुडे. 14% हमारे डायरेक्ट टैक्सेस बढ़े. तो जो गवर्नमेंट ने अपने बजट में जो नंबर्स को अज्यूम किया था कि दे आर एक्सपेक्टिंग इंक्रीज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस बाय 12%, आई थिंक दे आर ऑन लाइन ऑफ दैट. तो ऐसा लगता है कि कैपेक्स के अंदर कटौती नहीं होगी फिर इन दैट वे. सो कैपेक्स विल आल्सो कंटिन्यू फ्रॉम गवर्नमेंट. दैट इज इट इज लुकिंग एट द नंबर्स एटलीस्ट फॉर आई सॉ यस्टरडे. तो टैक्स कलेक्शन बढ़ते हैं which means more income, so they will be able to give the income towards the capex also. जो 1 लाख करोड़ को लॉस हुआ है, I think that can get compensated with the tax increases. So that might happen. So 23,500 पे, and don't forget one thing, आप जब इलेक्शन के बाद जो रैली हुई थी आपकी, हमने एक स्टॉप लिया था, एक छोटा सा पड़ाव लिया था हमने 24,200 पे, जहां पे हम दोबारा लौट के 23,800 पे आए थे. फिर हम दोबारा रैली हमने रिज्यूम करी. वो जो लास्ट के 2,000 पॉइंट आए थे ना, 24,200 से 26,200, इफ यू जस्ट गो बैक टू द चार्ट्स, वो रैली वाज ड्रिवन मोस्टली बाय FMCG एंड IT. और हम कोई दोनों डे सपोर्ट नहीं कर रहे, फिलहाल नहीं कर रहे. तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 23,500 to 24,000 इज द लेवल वेयर वी हैव टू रीअसेस, वी हैव टू बुक प्रॉफिट्स, एंड वी हैव टू सी एंड वेट फॉर द अर्निंग एक्सेट्रा. सो वो रेंज रहेगा जहां तक निकल सकता है. उसके बियॉन्ड जाने में चांसेस बहुत कम है. सो जो जिन ट्रेडर्स ने पहले से पोजीशंस ली हैं 23,500 जाते हैं, तो दे शुड रिव्यू. Anyways, I will be coming and telling my view, but I'm just giving you an early some kind of a glimpse, because कई बार मेरे वीडियोस अब थोड़े डिस्टर्ब रहेंगे because I'm doing a lot of personal work. Yesterday I also could not make a video, and probably up to 31st March I'll be busy with my personal engagements and all those stuff. So हो सकता है मैं आपका वीडियो नहीं बना पाऊँ, but I'm just giving you a glimpse how to see Nifty moving forward. If at all you're seeing only Nifty bank, if you're a trader in index, स्टॉक स्पेसिफिक एनीवे यूज द मूव्स, वहां कोई इशू नहीं है. यू टू पिक द सेक्टर्स जो अच्छे लग रहे हैं यहाँ से, एंड यू कैन गो फॉर. फार्मा इज लुकिंग गुड in spite of the headwinds of your tariffs, but still is looking good. निफ्टी बैंक में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फाइनेंशियल तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, टैरिफ का कोई इंपैक्ट नहीं फाइनेंशियल्स को. दैट इज व्हाई यू सी the bigger movements are coming in financials only, क्योंकि वहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट है. और बहुत सारे टेलमेंट आ गए हैं, रेट कट कर दिया है आपने, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन हो गया RBI का, एंड देव अदर स्टेप्स आल्सो. आपने रिस्क वेट कम कर दिया है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपकी इकोनॉमी दोबारा चलना होनी शुरू हो गई है. जीडीपी ग्रोथ अगेन कमिंग बैक, व्हिच मींस कंज्यूमर सेंटिमेंट इज कमिंग बैक, व्हिच मींस कंज्यूमर स्पेंडिंग विल हैपन मोर. तो वो एडवांटेज आपको मिलने शुरू हो गए. इसलिए वो सेक्टर, और वो वहां पे कोई हेडविंड नहीं है फ्रॉम द टैरिफ्स, सो दैट सेक्टर विल रिमेन स्ट्रॉन्गर एंड दैट विल लीड द मार्केट्स. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली. बट उसकी भी लिमिट है, you cannot overstretch it. So keeping this in mind, I think 23,500 is where we should review. वहां तक मेरे ख्याल से एक बार शायद मार्केट में जाना चाहिए. This is what I feel, and after that we'll decide again where it ends and where the rally ends. But this is what is looking like. So with this, I'll end my analysis for today, and let's see what happens. It will be a fantastic week this week also, and next week. A lot of news-driven things, and enjoy the markets because they are in green for a long time. So thank you so much for your time.